First question, problem number 13 है, let a is equal to a 2f 0 2f b 3f 0 3f and c. Okay, where a and b c where a b c and f belongs to R and f not equal to 0. Okay, so the geometric multiplicity of the largest eigenvalue of a equals, since a is a symmetric, okay, a is a symmetric and entries above this main diagonal, that means this 2f and 3f, and below this main diagonal 2f and again 3f is non-zero. Why? Because f not equal to 0. It's non-zero. Okay, non-zero entry मैं ऐसे लिख देता हूँ, non-zero entry above and below, above and below main diagonal. Okay. Above and below main diagonal excluding this one, I mean only diagonal entries, right? So this above and below diagonal entries are non-zero, implies this all eigenvalue of this matrix. Okay, it implies that all eigenvalue of this matrix, eigenvalues of A, are distinct. Okay, then distinct means AM equals to 1. Okay, for all eigenvalue, for all eigenvalues. Now, since we know that ZM, geometric multiplicity, is always less than or equal to arithmetic multiplicity, and if eigenvalue exists, then geometric multiplicity is greater than or equal to 1, and this is equal to 1. Okay, AM for any eigenvalue is equal to 1, implies what we get, geometric multiplicity is equal to 1. Okay, so if geometric multiplicity of all eigenvalue are 1, implies geometric multiplicity of largest eigenvalue is again also 1. So geometric multiplicity of largest eigenvalue is 1, therefore 1 is the correct answer. Okay. Now question number 14. Consider the subspace W. W1 is given by x1, x2, x3. It is a subspace, it belongs to R3, right? And this is a subspace of R3 with x1 equal to x2 plus 2x3, right? And W2 equals to x1, x2, x3, such that x1 equals to 3x2 plus 2x3, okay, of R3. So these two, W1 and W2, are subspaces of R3. Now what we have to find out, W1 plus, what is the dimension of W1 plus W2? Dimension of W1 plus W2. Okay, so since we know that dimension of W1 plus W2 equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W intersection W2. Now, okay, now dimension of, what is the dimension of W1? Dimension of W1 equal to 2. Why? Because there are two independent variables, right? X2 and X3. So dimension of W1 is equal to 1. Oh, sorry, 2. And dimension of W2 equals to again 2, because there are two independent variables. X is dependent on X2 and X3, and X2 and X3 are independent variable, right? So dimension of W2 equal to 2. Now define W1 intersection W2 as, it is defined
x1 x2 x3 such that x1 equals to these two conditions are satisfied. Okay, and x1 equals to 3x2 plus 2x3. Now जब हम इसको सॉल्व करेंगे, when we solve these two equations we get only one independent variable. काफ़ी ईजी है फाइंड आउट करना, सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड नाउ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टेक x3 एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन x1 इंडिपेंडेंट ऑन x3. ओके, सो यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, व्हाट वी गेट, w1 इंटरसेक्शन w2 इक्वल्स टू 1. Dimension of w intersection w2 equals to 1. Now then what will be the dimension of w1 plus w2? Since dimension of w1 equal to 2, dimension of w2 equal to 2, we get 2 plus 2 minus dimension of w1 intersection w2 equals to 1. So what is the dimension of w1 plus w2? 3. So 3 is the correct answer. Okay, so यहाँ पे इंटरसेक्शन मीन्स जो W1 एंड W2 बोथ सब स्पेसिस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, राइट. सो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे एक यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे दोनों कांस्टेंट को जो सेटिस्फाई करे वो W1 इंटरसेक्शन W2 होगा, राइट. सो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. लेट V be the real vector space of all polynomial of degree less than or equal to 2, means V equals to P2R, right. इसको सिंबल में लिख दे रहा हूँ मैं, with real coefficient, right, real coefficient of degree less than or equal to 2. So this is nothing but P2R. Now define a linear transformation tree from T from V to V by, define this linear transformation by TFP equals to 2P plus P dash. Okay, for all P belongs to V. P belongs to means P, small p belongs to P2R. Okay, so P dash is here P dash is the derivative of P, then number of non-zero entries in the Jordan canonical form, JC form of a matrix of T equals. Okay, तो यहाँ पे गेप में क्या होता है, जैसे CSIR नेट में उसमें हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि इसका जॉर्डन फॉर्म क्या होगा या ऐसे होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल होता नहीं, एंट्रीज देनी होती है. तो जस्ट एक पैटर्न, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें एक पैटर्न, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होंगी, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारा जॉर्डन फॉर्म क्या होगा, मीन्स उसका नॉलेज है. ओके, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोई एक स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं. TF1 इक्वल्स टू 2. TF1 कैसे डिफाइंड होगा, 2P, राइट. सो 2 और यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0. ओके, सो TF, इसकी P के बेसिस क्या होंगे, स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर, ये बेसिस होंगे. ओके, नाउ TF1 इक्वल्स टू 2, TFX इक्वल्स टू 2x प्लस 1, राइट. TFX स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 2P प्लस P डैश P प्राइम, राइट. P प्राइम क्या हो जाएगा, 2x, राइट. यहाँ पे हमें ये आ गया, तो यहाँ से हमारा T क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे मैं V से V है तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, लेकिन स्टार्ट ऐसे करेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस है. सपोज ये ऑर्डर्ड बेसिस है तो 1x x स्क्वायर पैटर्न ऐसे होगा, तो ये 1 के मल्टीपल में 2 है, x के मल्टीपल में 0 है, ऐसे लिखेंगे. 2 को कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ पे विजिबल है कि 0 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स, ओके, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसे. और 2x प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, ऐसे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 0 0 ये कॉलम में लिखेंगे, 2 0 0. ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 0. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, 0 है, मीन्स 0. 2 का एक्स का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है. तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आ गई, राइट. अब सिंस रैंक ऑफ
टी माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज इसका आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा, ई यानी E2। ओके, तो डायमेंशन ऑफ E2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, बिकॉज रैंक इज 2 एंड दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो 3 minus 2 will be the dimension of E2, means null space, nullity. This dimension E2 is nothing but nullity, right? So dimension of E2 equal to 3 minus 2 means 1. Okay, so number of Jordan blocks corresponding to lambda equal to 2 is 1. Okay, जितनी इसकी हमारे पास नलिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स उतने होंगे। सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इक्वल्स टू 1। सिंस यहाँ पे एक ही आइगन वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग जॉर्डन फॉर्म क्या बनेगा, 2 2 2। ओके, एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, सो हमारे पास ये एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? सो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर सेटिस्फाई कराना चाहें तो रैंक ऑफ दिस ये इसका नलिटी क्या हो जाएगा, 1 अगेन आएगा। और हमारा यहाँ पे वेरीफाई कराना चाहें तो सो नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होगी, नॉन जीरो एंट्रीज 3 2 5। ओके, अदर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, राइट? सो नॉन जीरो एंट्रीज जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ओके, लेट C01 be the real vector space of all continuous real valued function on 0, 1 and let C means हमारे पास एक real vector space क्या है, C0, 1, right? This is vector space of all continuous real valued function over this 0, 1, okay, closed interval 0, 1 and let T be a linear operator on this। T क्या linear operator है over this, so linear operator means linear transformation from same vector space to same vector space, right? So कैसे defined है T? T of F is defined as follows: 0 to 1 sin x plus y f of y dy, okay, where x belongs to closed interval 0, 1, okay, ये क्लियर है? एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल्स टू, सो रेंज स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, टी ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है टी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी है, सो रेंज स्पेस कैसे डिफाइंड होता है, लेट मी राइट डिफरेंट। रेंज स्पेस कैसे डिफाइंड होता है, रेंज स्पेस ऑफ टी ऑल एक्स, टी एक्स टाइप, राइट, वेयर एक्स बिलोंग्स टू वी, सो इस टाइप के होंगे टी एक्स टाइप के, ओके, सो ये रेंज स्पेस होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी वैल्यू एफ है, एफ रैंडम ऐसे है, आर्बिट्री वैल्यू है, सो टी ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, इसको ओपन करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, राइट, ये आ गया एफ वाई डी वाई, ओके। नाउ दिस वी कैन राइट दिस एज 0 to 1, let me write sin x, right, sin x, so cos y, because इंटीग्रल y के ऊपर है, राइट, सो हम x वाला जो भी टर्म है उसको बाहर फाइंड निकाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos y एफ वाई डी वाई प्लस cos x 0 to 1 sin y एफ वाई डी वाई, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ भी वैल्यू हो, ये तो है तो डेफिनेट इंटीग्रल ही रहा, यहाँ पे ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to 1 इंटीग्रल है y के टर्म में, ये y के टर्म में, तो ये कोई एक फिक्स नंबर होगा, लेट ये फिक्स नंबर क्या है C1,
और ये फिक्स नंबर क्या है C2, विच इज़ ए कांस्टेंट होगा राइट यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल ओवर 0 to 1 है ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। ओके, सो हमारे पास ये आ जाएगा C1 sin x प्लस C2 cos y cos x राइट। सो C1 and C2 आर कांस्टेंट। ओके, इम्प्लाइज रेंज स्पेस, रेंज स्पेस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, टी ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे टी ऑफ एक्स एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एफ है, फंक्शन है, पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं फंक्शन है। ओके, सो कंटिन्यूस फंक्शन। सो यहाँ पे जो रेंज स्पेस डिफाइंड होगा, रेंज स्पेस इज रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस कैसे, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, सच दैट एफ बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही डिफाइंड होगा ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, टी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, C1 sin x प्लस C2 cos x। ओके, x बिलोंग्स टू 0,1। अब यहाँ पे x लिख देंगे क्योंकि f का तो पंगा ही खत्म हो गया राइट यहाँ पे। तो यहाँ पे sin x हो गया, cos x हो गया। ओके, नाउ दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x एंड cos x। रॉन्सकियन से देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, sin x एंड cos x आर इंडिपेंडेंट मीन्स फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम ये दो एलिमेंट, दो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, रेंज इक्वल टू 2। ओके, sin x cos x से जनरेट हो रहा है हमारा रेंज स्पेस। सो डायमेंशन इज इक्वल टू 2। नाउ हमारे पास क्या है, 32nd क्वेश्चन क्या है, कंसिडर टू स्टेटमेंट P एंड Q, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द मैट्रिक्स हैज 0 5 0 7 हैज इन्फिनिटली मेनी LU factorization where L is a lower triangular with each diagonal entry 1 and U is a upper triangular right। so यहाँ पे हम लेते हैं कि 0 5 0 7, इसको हम इस टाइप में लिख ही लेते हैं। कैसे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज 1 एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स as lower triangular matrix with each diagonal entry 1 and U is upper triangular right। LU decomposition हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा BC AB AC प्लस D। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, B इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू 5, AC प्लस D इक्वल्स टू 7 इम्प्लाइज 5A प्लस D इक्वल्स टू 7। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक A D पे डिपेंडेंट है या D A पे डिपेंडेंट है, एक मतलब इसका डायमेंशन 1 है राइट। एक को चूज करेंगे तो इन्फिनिट मेनी वैल्यूज़ मिलेगी, हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। D की कोई वैल्यू चूज करेंगे, A की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी एंड हमें एक LU डिकम्पोजिशन इसका मिल जाएगा। सो क्या हो जाएगा हमारा P, लेट मी राइट डिफरेंट, ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट Q, द matrix 0 0 0 and 2 5 has no LU factorization where L is a lower triangular with each diagonal entry 1, let's say this, and upper triangular matrix U is a upper triangular matrix BC 0D। ओके, ये है। तो यहाँ पे से हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC AB ऊपर वाला ही AC प्लस D राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 0 एंड AB इक्वल्स टू 2, AB इक्वल्स टू 2। नाउ सिंस B is equal to 0 implies 0 equal to 2 which is a contradiction right। सो कंट्रडिक्शन यहाँ पे मिल गया मुझे कि 0 equal to 2। तो यहाँ पे Q क्या है, नो, इट हैज़ नो LU फैक्टराइजेशन। सो हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, देयरफॉर
Option B is true. Option B is correct. Okay. Now 40 question क्या है? 48th question. Let M2R be the vector space of 2 cross 2 real matrices over the field R. Okay. Define. So हमारे पास क्या है? M2R है. We have M2R. Define a linear transformation is from M2R to M2R. Define a linear transformation from M2R to M2R. Okay. By this relation, S of x equals to 2x plus x transpose. Okay. Then the trace of S equals. So S का ट्रेस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, राइट. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फॉर गिवन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी एन सी आर बेसिस ऑफ वी, इसके बेसिस वी है. ओके. सो हमारे पास ये आ जाता है, एक रिलेशन होता है एम चेंज ऑफ बेसिस का, राइट. बी एन सी सपोज बेसिस है. ओके. ठीक है. बेसिस, टू बेसिस, डिफरेंट बेसिस है. तो हमारे पास क्या आ जाता है रिलेशन, एक एम सी सी एंड सी पी कॉमा सी, राइट. एंड ट्रेस ऑफ दिस वी नो दिस सिमिलर मैट्रिसेस का इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी कॉमा सी. ओके. सो ये हमारे पास ये रिलेशन होल्ड करता है. ओके. तो इस चीज़ का यूज करेंगे. तो कैसे, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं 0,0, बी एंड सी को सेम ले लेते हैं, और बी कुछ भी हो हम एक बेसिस ले सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, जिसका करस्पॉन्डिंग जो ट्रेस आएगा वही सेम ट्रेस दूसरे के करस्पॉन्डिंग भी आएगा. लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमें सेम बेसिस से सेम बेसिस पे लेना है. ऐसा नहीं कि बी से सी पे ले रहे हैं या समथिंग, कोई दो डिफरेंट बेसिस है, टोटली डिफरेंट, एंड यहाँ पे बी एन सी एंड यहाँ पे बी से सी पे ले रहे हैं. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें सेम बेसिस लेना होगा. ओके. देन ओनली ट्रेस ऑफ एम बी कॉमा बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एम होगा. ओके. दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगा. ओके. सो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं. 0 0 0, यस, 0 1 0 0. इसका क्या आ जाएगा? 0 2 1 0. 0 0 1 0 का क्या हो जाएगा? 0 1 2 0. एंड एस ऑफ 0 0 0 1 का क्या हो जाएगा? 0 0 0 3, राइट. सो एस क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स. फाइनली मुझे मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, उसका ट्रेस मालूम हो जाए, देन ट्रेस फाइंड मीन्स मैट्रिक्स मालूम हो जाए, उसका ट्रेस भी मालूम हो जाएगा. तो मैट्रिक्स क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग हम अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो 3 टाइम्स E1 प्लस 0 टाइम्स E2 प्लस 0 टाइम्स E3 प्लस 0 टाइम्स E4. ओके. सो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 3 0 0 0. ओके. यही आ जाएगा. इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, इन चार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ऑर्डर्ड बेसिस, राइट. सो हमारे पास आएगा 0 पहला, 2 सेकेंड, थर्ड 1 0. फिर आ जाएगा 0 1 2 0 0 0 0 3. ओके. हमारे पास ये आ गया. नाउ ट्रेस ऑफ दिस, इसका ट्रेस क्या होगा? 3 3 6 4 10, राइट. जो इसका ट्रेस होगा सेम ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, बिकॉज मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के ट्रेस इक्वल होते हैं. लेकिन याद रखना यहाँ पे हमें एक ये नोट करना होगा कि यहाँ पे जो बेसिस लेना है सेम बेसिस लेना है. ओके. हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने 1 0 0 0 लिया, ये स्टैंडर्ड बेसिस लिया, और सपोज़ ये भी तो बेसिस होगा, यहाँ पे 2 ले लें. ओके. 2 0 0, बाकी सबको सेम रखो. अगर यहाँ पे 2 ले लिए तो ये एंट्री डिफरेंट हो जाएगी, राइट. अगर ये एंट्री डिफरेंट हो गई तो ये एंट्री डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज ये उसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है ना.
तो ये एंट्री डिफरेंट हो जाएगी। अगर यहाँ सेकंड में स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेस तो डिफरेंट आ जाएगा, वो चीज़ ट्रू नहीं होती, थ्योरेटिकली वो ट्रू नहीं है, ये फार्मूला होल्ड करता है। ओके ओके, नाउ 41 क्वेश्चन क्या है, कंसिडर R3 with the usual inner product if d is the distance from 0 1 1 1 to the subspace, d क्या है, डिस्टेंस है, d is the distance from 1 1 1 to let's say W, right? Span of 1 1 0 0 1 1 of R3, then 3D square equals to, सो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो होगा उससे हमारी जो डिस्टेंस होगी उस वेक्टर से, प्रोजेक्शन से जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी डी हो जाएगी, राइट। इस वेक्टर से उस वेक्टर की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी डी हो जाएगी, एंड देन 3D स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से। तो हम आप प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है, तो सपोज ये एक्स है, ओके, ये V1 V2 है, V1 V2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स V1 फार्मूला नॉर्म ऑफ V1, ओके। सो यहाँ पे V1, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स V2, यहाँ पे नॉर्म ऑफ V2, और यहाँ पे सॉरी ये स्क्वायर होगा, नॉर्मल V1 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे V2 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2, ये नॉर्मल जो होगा 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक्स डॉट इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 1 करस्पॉन्डिंग 1 को 1, 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, राइट। सो 2 हो जाएगा, 2/2, और V1 की वैल्यू क्या है, V1 को अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं 1 1 0, राइट, प्लस अगेन 2/2 0 1 1, सो हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन 1 to 1, ओके। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू नॉर्म ऑफ 1 1 1 एक्स माइनस जो प्रोजेक्शन आया है P, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है, 1 2 1, ओके। सो इसका नाम मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस पी, ओके। सो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, 0 1 0 -1 0 लिख लो, 0 1 लिख लो, इसको अगर p माइनस एक्स कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 0 या 0 1 0, इसको इधर लिख लेते हैं तो, और इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, 1, इम्प्लाइज 3D स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 42nd क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है, ए इक्वल्स टू है I9 to U transpose U with U transpose equals to 1/9 1 1 9 times 1, okay, where I is a 9×9 matrix and U is a transpose of U. If lambda and mu are two distinct eigenvalues of A, then lambda minus mu equals to, okay, so हमें lambda minus mu का जो मॉडुलस है वो फाइंड आउट करना है, राइट। सो मैं लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट कर लें, आ जाएगा मेरे पास। तो U ट्रांसपोज U एंड UTU की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इक्वल होते हैं, ये किसी और में डिस्कस कर लेंगे कोई थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन ये होता है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, सिंस इसमें एक ही एंट्री होगी, अगर ये 1 × सपोज U इज़ व्हाट 1×9, राइट, 1×9 की मैट्रिक्स है, तो U क्या हो जाएगा 9×1 की, और ये U ट्रांसपोज, ओके। सो 1×9 एंड 9×1 हो जाएगा ये 1×9, तो ये 9×9 की होगी,
ये 1+1 की होगी। सो इसमें तो एक ही एंट्री आएगी, सो नॉन जीरो एंट्री एक ही, आइगन वैल्यू एक ही होगी, राइट। नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस सेम, सो सेम। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, u, इसके नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या आ रहे हैं, कैलकुलेट करने पे 1 आ रहा है, राइट। ut 1 आ रहा है, इम्प्लाइज 1 एंड बाकी सारी जीरो हो जाएंगे, सो 8 टाइम्स। सो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो आइगन वैल्यू 1 है, सिंगल, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, एंड जीरो विद अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी n इक्वल टू 8। ओके, सो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गए, कौन कौन से, 1 एंड 0। ओके, सो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा देन, ये तो हम किसकी कैलकुलेट किए, आइगन वैल्यू ऑफ यू टी यू की कैलकुलेट किए, राइट। यू टी यू की आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 0 एंड 1। ओके, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कुछ भी हो, इससे यहाँ पे काम कुछ नहीं है, बस केवल 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया कि मतलब कि डिस्टिंक्ट तो है ही, 2 आइगन वैल्यू आ ही रही हैं, लेकिन वो 2 ही आएंगी, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। और वो इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 8 होगी, 0 की। ओके, सो यहाँ पे 1 एंड 0 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो ए की क्या होगी आइगन वैल्यू, ए क्या कैसे डिफाइंड है, आई माइनस 2 यू टी यू। ओके, सो इसकी आइगन वैल्यू 1 होती है हमेशा, ऑलवेज। ओके, सो इसकी अगर 1 है तो ये -2 हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल टाइम्स होता है, राइट। सो एक ये अगेन एक फर्क थ्योरम होती है, पी ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होगी, सपोज ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, सो पी ऑफ ए की आइगन वैल्यू पी ऑफ लैम्डा होगी, तो इसकी जगह पे केवल आइगन वैल्यू पुट करना है, राइट। सो यहाँ की इसकी आइगन वैल्यू 1 है, इसकी 1 अगर लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो इसकी टोटल की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 मीन्स -1। ओके, अगर इसकी 0 एज्यूम करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 - 0 मीन्स 1। तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग जस्ट हमें एक ही जगह पे जो भी एक ही जगह पे यहाँ पे a⁴ मीन्स आइडेंटिटी, राइट। सो एक ही जगह पे लैम्डा पुट करना है। ओके, सो हमारे एक ही आइगन वैल्यू -1 एंड 1 हो गई, तो इसकी लैम्डा माइनस म्यू क्या होगा, सपोज लैम्डा इक्वल टू -1 म्यू इक्वल टू 1, सो 2 आ जाएगा। ओके, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा माइनस म्यू मॉडुलस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 2। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसमें पूरा लीनियर अलजेब्रा 2018 का सारे क्वेश्चन सॉल्व है, कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर पसंद आया हो कोई भी सोल्यूशन में तो लाइक करें,